Hello friends, welcome to Smart Commerce Class, a channel for all commerce aspirants. Today I am going to talk about comparative statements. In previous video, I talked about financial statements and its analysis. Here we are going to have a view on tools for financial statement analysis. Only financial statements they are not of much meaning and use until and unless they are analyzed. So analysis is very compulsory, analysis is very essential, and we analyze the financial statements through various tools. One of the tool of this analysis is comparative statements. So it means a comparative study of components of financial statements of 2 or more years of enterprise itself. So comparative study of components of financial statements. What does it mean? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें दो हमारे मेन स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट बैलेंस शीट एंड द अदर इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सो हम यहाँ पर थ्रू कंपैरेटिव स्टेटमेंट वी विल कंपेयर द एलिमेंट्स और आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 2 or more years. Okay, so this is also known as the second point. It is also known as horizontal analysis. Horizontal analysis because we are putting the amount what we are going to compare side by side to show the changes, and changes in absolute amount and changes in percentage. That's why it is called horizontal analysis. It is also known for inter-firm comparison and intra-firm comparison. Inter-firm comparison means firms financial statements. So if we talk about industry में अगर एक या दो फर्म्स हैं तो दोनों फर्म्स के हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हम उनको कंपेयर कर सकते हैं थ्रू दिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट. सो इट इज यूजफुल फॉर इंटर फर्म कंपैरिजन. इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर इंट्रा फर्म कंपैरिजन. इंट्रा फर्म कंपैरिजन मीन्स कंपैरिजन ऑफ आइटम्स विद इन द फर्म. एक ही फर्म के दो डिफरेंट पीरियड के हम एलिमेंट्स को आइटम्स को कंपेयर कर सकते हैं थ्रू दिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स. नाउ ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मेक डेटा सिंपलर एंड अंडरस्टैंडेबल. सो इसके अंदर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ये एक जितने हमारा कंपैरिजन है उस कंपैरिजन को एक टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है. सो टैबुलर फॉर्म में होने की वजह से द प्रेजेंटेशन इज वेरी सिंपल, वी कैन अंडरस्टैंड इट एंड वी कैन कंपेयर. सो इट इज प्रेजेंटेबल, अंडरस्टैंडेबल एंड कंपेरेबल. ओके, द नेक्स्ट, इट इंडिकेट्स द ट्रेंड. इट ऑब्जेक्टिव इज टू इंडिकेट द ट्रेंड्स. व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेंड here, so trend means what? Trend means the past things where we can see the performance, we can see the financial position of certain items, whether in increasing form or in decreasing form. So if for taking an example, revenue from operation if we take, सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर लास्ट 2 years में ये इंक्रीज हो रहा है और इसके साथ ही मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो इट शोज अ ट्रेंड कि हाँ विद द इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर कंसेक्यूटिवली 3 years आवर प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो इट इंडिकेट्स ट्रेंड एंड इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग. This third point, with the help of this trend, what we study through the comparative financial statements, we can forecast the future. And it next objective to indicate strength and weaknesses.
comparative statements, they indicates strength and weakness of the firm. ये strength और weakness हमारा liquidity, प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी, इन तीनों ही पॉइंट पर हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को कंपेयर कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट इंटरफर्म कंपैरिजन. अभी हम लोगों ने इंटरफर्म कंपैरिजन की बात की है. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव. जब हम बात करते हैं किसी भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट की, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. सो ऑल द लिमिटेशंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स is going to be fit or is going to we can see here in comparative statement also. Okay, so जहां जो सारे limitations हमारे financial statements के हैं, वही limitations हमें comparative statements में भी देखने को मिलेंगे. तो यहां पर हमारा first limitation है, it ignores price level changes in accountancy when we record the transactions. Only monetary transactions are recorded. Change in purchasing power of money is not recorded. It means it ignores price level changes. So this limitation is also present in our comparative statement. Historical information, financial statements, they are historical in nature. We record past transactions, past events. So it is historical in nature. तो हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट वो भी हमारा ये लिमिटेशन यहां भी अपीयर होती है. It shows historical information. Third is ignores qualitative aspect. We only record monetary transaction in financial statements or in accountancy. So वहां पर क्वालिटेटिव फैक्टर्स लाइक क्वालिटी ऑफ स्टाफ, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, वी डोंट रिकॉर्ड दीज इवेंट्स. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दे हैव सेम लिमिटेशन. एंड पर्सनल बायसनेस, personal judgment is present in accountancy. So personal biasness is present in any of the analysis or in comparative statements also. अब हम वन बाय वन कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे. कंपैरेटिव स्टेटमेंट दो है हमारे पास, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो फर्स्ट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट. इट इज analysis of balance sheet used for comparing assets and liabilities horizontally. So important here, the important is comparing assets and liabilities. Okay, so what is balance sheet? Balance sheet is a statement of assets and liabilities. It is a statement of financial position where assets and liabilities appear. So in comparative balance sheet, we are going to compare assets and liabilities again horizontally because it is horizontal analysis for 2 or more accounting period. Okay. Now this is the format. Here 6 columns we make. 6 कॉलम हम बनाते हैं. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, हियर प्रीवियस ईयर फिगर, करंट ईयर फिगर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज. ये 6 कॉलम हम यहां पर हमारे फॉर्मेट में होगा. और बिलीव मी, अकाउंट्स में ये सबसे सिंपल टॉपिक है जो कि 4 मार्क्स कैरी करता है सीबीएसई में. और आप देखेंगे तो फॉर्मेट में जो पर्टिकुलर्स के अमाउंट हैं उसमें 2 मेन हेडिंग्स हैं आपकी, जो कि है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज एंड असेट्स. अंडर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, यू ऑल नो इन एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स इन एनी बैलेंस शीट, दीज 3 आइटम्स, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, ये होते हैं. दीज आर मेजर हेडिंग्स अंडर equities and liabilities. One heading is not present here, that is
money received against share allotment pending, share allotment money received, ओके, वो आइटम नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है असेट्स। असेट्स में भी दो हमारी मेजर हेडिंग, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। फिर इन सारी जितनी हमारी मेजर हेडिंग्स हैं, उन मेजर हेडिंग्स की सब हेडिंग्स गिवन है, शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एक्सेट्रा। सो सिंपली हमें करना क्या है, क्वेश्चन में हमें पूरा का पूरा ये बैलेंस शीट गिवन होगा। सिंपली हमें बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को वन बाय वन इन देयर सीक्वेंस हमें उन्हें लिखना होगा, ओके। और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर का जो भी अमाउंट गिवन है वो प्रीवियस ईयर कॉलम में, उसी बैलेंस शीट के करंट ईयर अमाउंट को करंट ईयर बैलेंस शीट में, ये सारी चीजें लिखनी होंगी। और उसके बाद हमें कैलकुलेट करना होगा एब्सोल्यूट चेंज। द फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट चेंज इज, इट इज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। मीन्स करंट ईयर के फिगर को प्रीवियस ईयर के फिगर से माइनस, करंट ईयर फिगर से प्रीवियस ईयर फिगर को माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो एब्सोल्यूट चेंज, ओके। नाउ परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है आपका द एब्सोल्यूट चेंज, ओके। आई एम राइटिंग AB फॉर एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर multiplied by 100. So this is the formula for percentage change. Okay, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा इलस्ट्रेशन की तरफ। इलस्ट्रेशन में देखिए, ये एक इलस्ट्रेशन यहां पर हमने लिया हुआ है। दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ यूनिवर्स लिमिटेड ऑन 31st March. We need to prepare a comparative balance sheet. In this question, particulars means equities and liabilities, assets are given, and here figures are given for current year and previous year. जो ध्यान देने की बात है वो यहां पर ये है कि हमारा करंट ईयर क्वेश्चन में पहले दिया होता है 2012. If you see, the amount is for 31st March 2012. So this is current year, and next column 31st March 2011, this is for previous year. तो ध्यान क्या देना है कि हमारे क्वेश्चन में तो करंट ईयर फिगर पहले गिवन होता है और प्रीवियस ईयर बाद में गिवन होता है, बट हमारे फॉर्मेट में करंट ईयर प्रीवियस ईयर फिगर पहले दिया होगा और करंट ईयर फिगर बाद में। सो जब हम अपने अमाउंट्स को लिखेंगे तो हम इस चीज का ध्यान देंगे। नाउ अब इसका सोल्यूशन के टेबल पर जाते हैं हम। सोल्यूशन में सिंपल हमने क्या करना है, सारे के सारे पर्टिकुलर्स में वो आइटम्स जो कि हमारी बैलेंस शीट में गिवन है, लाइक इक्विटीज एंड लायबिलिटीज इस स्लाइड में अपीयर हो रहा है। सो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, उसमें उसकी सब हेडिंग शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, टोटल, इवन टोटल ऑल्सो। वो सारे के सारे फिगर्स हम एज इट इज लिख देंगे, प्रीवियस ईयर फिगर को प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर फिगर को करंट ईयर फिगर में। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम क्या कैलकुलेट करेंगे अभी, पर एब्सोल्यूट चेंज। सो एब्सोल्यूट चेंज का आपको ये मालूम है फॉर्मूला, जो कि क्या है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। इस सोल्यूशन में मैंने लिखा हुआ है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। सो 20 lakhs माइनस 15 lakhs, 5 lakh इज एब्सोल्यूट चेंज फॉर शेयर कैपिटल। इसके बाद 3 lakh माइनस 4 lakh हमारा आता है 1 lakh। यहां पर ये देखना होगा करंट ईयर फिगर इज लेस देन प्रीवियस ईयर फिगर, तो 1 lakh किस में आया, माइनस में आया। माइनस हम शो नहीं करते हैं, हम माइनस की जगह पर देखिए ये ब्रैकेट यूज किया गया है, 1 lakh ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सो माइनस रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट लगाना है हमें। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 6 lakh, 9 lakh, सो 9 minus 6, 3 lakh इज एब्सोल्यूट चेंज।
सिमिलरली हम सभी आइटम्स के लिए एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट चेंज है परसेंटेज चेंज। सो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो क्या था? वो था प्रीवियस ईयर, वो था एब्सोल्यूट चेंज, ओके, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इस फॉर्मूले पर हमें अपने फिगर्स को पुट करना है। एब्सोल्यूट चेंज फॉर शेयर कैपिटल इज 5 लाख। 5 lakh divided by 15 lakh multiplied by 100 will come 33.33%. So 33.33% है आपका शेयर कैपिटल का परसेंटेज चेंज। ओके, ये एक्सप्लेनेशन की स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये परसेंटेज चेंज का ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है, 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, 33.33%। सेम थिंग फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस। फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, देखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए एब्सोल्यूट चेंज है 1 लाख माइनस 1 लाख और प्रीवियस ईयर फिगर है 4 लाख। सो एक्सप्लेनेशन की स्लाइड में इट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर 4 लाख इंटू 100, 25%। लेकिन ये माइनस में है, क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज माइनस में था। सो माइनस के लिए रिप्रेजेंट किस में करना है हमें? ब्रैकेट में। सो यहां पर आप देखिए ये 25% माइनस है, माइनस के लिए ब्रैकेट यूज किया है। सेम हम इसी तरह से लॉन्ग टर्म बोरोइंग वी कैन कैलकुलेट फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वी कैन कैलकुलेट फॉर ट्रेड पेबल्स एंड इवन फॉर टोटल ऑल्सो। फॉर टोटल ऑल्सो वी विल कैलकुलेट परसेंटेज। डोंट फॉरगेट, इसको ऐड नहीं करना है, टोटल मीन्स उसको ऐड नहीं करना है। टोटल के लिए सेम जो बाकी फिगर्स पर कर रहे हैं, 35 माइनस 27, 8 लाख इज एब्सोल्यूट चेंज और 8 लाख डिवाइडेड बाय 27 इंटू 100, this is for 29.6, this will come 29.63. So this is how we calculate, we can prepare comparative balance sheet. In that slide I covered only equities and liabilities because of less space. In this table I covered assets. Same thing we will do for assets, non-current assets and current assets. बाकी सारे सब हेडिंग्स, सारे प्रीवियस ईयर फिगर को पहले लिखना, करंट ईयर फिगर को उसके बाद, फिर एब्सोल्यूट चेंज और फिर परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करना है। सो ये आपका यहां पर आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थैंक यू।